माय स्टूडेंट्स, आज हम स्पेशली हमारे जो गुरुदास स्कूल में हमारे सपोर्ट के लिए थे, स्कूल के सपोर्ट के लिए, जैसे हमारे 5 to 8 मई 2025 ये जो इंटरव्यू हो रहा है, इस इंटरव्यू का हमारा सब्जेक्ट था पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी असमिस, पीजीटी लाइब्रेरियन और पीजीटी कॉमर्स। तो अलग अलग जेएनयू से हमारे प्रिंसिपल एक्सपर्ट आए हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए हैं और ऑफिस स्टाफ आए हैं। तो होल प्रोसेस के लिए ये सब का ज़रूरत है। इसके साथ साथ हमारे बच्चे भी हैं हम लोग को सपोर्ट के लिए, तो हमने प्लान किया कि थोड़ा सा काउंसलिंग हो जाए। तो इतना हमारे ऑफिसर्स हैं तो थोड़ा सा अगर बच्चों के साथ बातचीत हो जाए तो अच्छा होगा, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम सेट किया। तो कल हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें हम हमारे बच्चों का टैलेंट देखेंगे कल्चरल उसमें, और हम चाहेंगे कि हमारा प्रिंसिपल भी और कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं, कल्चरल में हिस्सा ले सकते हैं, टीचर भी, तो वो हम कल देखेंगे। तो पहले तुम लोग का इंट्रोडक्शन दे दो, उसके बाद हम शाम लोग को बोलेंगे कुछ बोलने के लिए। तुमसे शुरू करो, मतलब नाम पास इतना बताना और कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। हाँ वो भी बताओ, वो भी बताओ। और साथ में एम क्या है वो भी बताओ। My name is Anshika Priyadarshini. I'm from class 9 and my favorite subject is English and my aim is doctor. Good evening to all teachers. Myself Rashia Sarkar and I am studying in 10th now. And my favorite subject is social science and maths. And my aim is like I just wanna become a good sports person. सही जो से कौन सी क्या खेलते हो? हाँ? की खेला है? Sir, basketball. Good evening teachers. My name is Anshika and I'm in class 9. My favorite subject is Hindi and my aim is business. Good evening teachers, my name is Shrishti Sirkan. I am in class 8. My aim is इफाले भाषा में तुम इफाले भाषा गुजराती में बोलेंगे क्या? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? What is your favorite subject? English. इंग्लिश। My name is Aditi Kaisa. I am in class 9. My favorite subject is maths and my aim is algebra. Your age is? My name is Anita Kastan. I am class 9. My aim is Dr. Mathematics. Good evening teachers. My name is Asana Ashura. I am in class 9 and my favorite subject is maths and I want to become a professor. Good evening to all teachers. My name is Gunjan. I am in class 9. My favorite subject is science and my aim is arts. Myself Ishita Modular. I am in class 9. My favorite subject is English and I want to become an Indian Army. Good evening teachers, my name is Dixita Devi. My favorite subject is science and I become a doctor. Good evening teachers. My name is Priscilla Nanda. I am in class 9. My favorite subject is SST. I want to become an IAS. तो हम मैडम से शुरू करना चाहेंगे थोड़ा सा उनको कुछ, क्योंकि आप यहाँ पहले थे तो कैसा तो आपका स्कूल कैसा मिला हम लोग के लिए थोड़ा बहुत बैठो। Respected sirs, my dear teachers and my lovely students, good evening everyone. Good evening, ma'am. So it has been really a great privilege for me to be in this Vidyalaya again and to be a part of this important program of the contractual interview of various subjects here. And as
the experts, I want to say, from different fields. They have gathered here, the different officials from regional office Ceylon, they have also arrived here. So I think that being the parent school, it's the responsibility of the venue school, I would like to say that, to make all this type of arrangement for the comfortable stay of all the delegates from the different fields here. And in order to achieve, or in order to conduct this important program, it's very, very important that the main role of the student here, the people, is very, very important, because the different tasks can be done by the MTS or the different workers also. But through your involvement, as we can see right from the morning breakfast, then again helping in the various activities here. So till dinner you have been working, you have been serving, and you all people are making us comfortable. So that's a great job. And I do feel that it's one of the main important thing that the students should learn. Apart from academic studies, these things are also very, very important. It develops our different skills, social, isn't it? Cultural, and how to deal with the various situations, how to deal with the various problems. I have seen you girls, you have been helping each and every member, right from morning till evening, dealing with each and every problem. Even in the library, how the way that you were analyzing the things, analyzing the files, that's the very important. I hope that you have developed the team spirit also, right? Then how to arrange the things, how to collaborate the things also. So, being the student of this Vidyalaya, I think that it's a great opportunity for you people to be here. And being one of the teachers of this school, as Sir had rightly told me to share my experience. So being the teacher here in this school, as a PGT Economics here, and as I have got the opportunity to visit the school here, so certainly, sir, so many changes are there, positive changes are there, and I have found you people to be more and more energetic, more and more dedicated also. And as sir have also planned, he is also planning, as just now sir has shared things with us also, that he is also planning to make an arrangement for a cultural program tomorrow. I hope that you people, you will be able to present something, right? So I know you people, you are already very much talented. You have got so many abilities in different fields like singing, dancing. Our teachers will also join you. Sir, now this much. If I will be able to again recall something, I will share, sir. Thank you. One second. Yeah, thank you everyone. Respected the Venue Principal, my fellow principals and the staff
from different JMBs, and it's indeed a great opportunity for me also because like ma'am, I was also a part of this school, and I had worked here for 10 glorious years for me, and it is indeed a homecoming for me, sir. Thank you very much for giving us the opportunity to visit this school. Because when I, see your faces, I saw my, I see my childhood. Because I was also like that. I also, like that, like you people. Now, when I, just listened to your introduction part, you have told us about your various subjects, English, science, things like that. But more beautifully, you have told us about your targets or objectives in your life. That is your aim in life, to be in a very familiar words. Now, it is really pleasing for me that you have chosen a very, very type of careers. Some of you want to be an IAS officer, some of you want to be a doctor, some of you want to be a sports person, that is, some of you want to be an army officer. That is very, very pleasing for me because nowadays also, as for if you analyze or if you look into the different schemes or different initiatives that are being put forward by various NGOs as well as the various governments, we are putting a lot of emphasis on girls' education. Because traditionally, in some of the Indian societies, we tend not to give that much opportunity to girl child as to the male counterpart, as compared to the male counterpart. So here it is really pleasing for me to see that you have chosen some career course, which is very different. And I'm equally sure that you will be doing your best to achieve your target. It is very nice for me. I'm really, really pleased to hear your things. Now, dear students, when you choose a career for you, choosing is one thing. Before you choose a career, you need to think of a lot of things. Suppose your attitude, your liking, your disliking, and maybe if you choose it as a career, the future prospects of this career profession is also taken into account. I'm sure you have thought about these things. But most importantly, what I have seen from my experience is that the students will keep on planning. They do not do the necessary activities to fulfill their planning. That is very important. It's same thing as when you have the result declared. On the day of result declaration, you will be taking up the resolution that you will be doing very hard in the next session. By the end of the next academic session, you again come to block 0. So that type of thing. So this is a continuous process of achieving your target. Now, as you are here, you are looking your role models. Ma'am is a role model for you. She being, she is from this school and she had got the post of principal from this school. So you can be inspired from her examples. So you are looking at various persons and many persons and all Sir, all of them myself also earlier done that I know. Sir was also a part of the school. He was PhD physics. Although I did not have the opportunity to meet him, but he was also a part of the school. So that's what I was telling. That you need to continuously work upon these things. Always try to improve yourself day by day. As you are looking to different persons here, all the persons are continuously giving you some of the inputs. You need to have a very analytical mind to see that the activities of each and every person, what their people are doing, and try to learn from their activities. That is very important. This is the first thing I wanted to tell you. Next is that I have seen your energetic nature. This is very also for me also. It is a very great experience because although it was just a few in numbers, just 11 in number, and there are something like 50 odd people here. All of these are from either principal or say office staff or something like that. Moreover, you are having
more than 200 to 300 candidates each day visiting this school. You are caring each and everyone equally. That is very good. That gives us your working style. That gives us the idea about your working style. Not only in the academic work where the actual interview is being taken place, also in the maths also we have been seeing that. That is very good. And also I have made to understood that you are here on your own will. Nobody has asked you to be here, and you have offered to help. I was told these things. It is also a very good thing that voluntarily you have decided to stay here. You are now summer break is something which is when I was a child, so summer break was very dear to me. I just wanted to enjoy each and every hour of the summer break. Now you are staying here in this school, even in your summer break. That itself tells a lot about you people. I am very proud of you because I have seen you when you was in class 6, and then I left this school. But when I see you right now, and from this class 6 student, from the class 8 or 9 students, you have grown a lot. That made me very proud, and I am sure you will make all of us proud. You will make Navodaya proud by becoming what you desire to be. All the best to you, and God bless you. Thank you. Sir, this is A very good evening to many principal sir, all my colleagues and dear students. So my view is that if you are a Navodayan, you should be all around. It is a place where it's not a tuition center, it's not a coaching center, it's a school, it's a residential school. And we think that when our students pass out from here after 7 years of staying in Navodaya, they should not be uncomfortable in doing any job. So it's all-round development that you involve yourself in different activities. Now by involving yourself in this activity, you develop a sort of, you can say, management skills at very micro level. How to just improvise, visualize the situation which is going to come in front of you. It's very small, it looks very small, but you see it takes a lot of alertness, mental alert, you should mentally alert, कहाँ क्या चाहिए, किसको क्या जरूरत हो सकता है, how we should be ready for that. So as per, if you think like that, you should participate in all these sort of activities. You should not be मैंने तो हॉस्टल में रही थी, मैंने तो सिर्फ किताब उठाया है, पढ़ा है, मेरे को काम करना नहीं आता. You will be going out of your cities, out of your towns, far away from your families for higher education, for jobs. Then you will require these skills. You will not call your mother, मम्मी खाना बनाना नहीं आता, मैगी बनानी आती है, सर तो ये सब चीजें मैंने कभी की नहीं है. So in that sense, it's great, and I also advise you to be participating in any sort of such activities, with a very positive mindset and thinking that, okay, I am going to learn something. Knowledge is not only in books, and Navodaya is not only about syllabus and exam and business. Navodaya is all-round development. You see, from morning to evening, you are involved in so many activities. That's the difference between a Navodayan and a other school, day scholar school or government school student. When you pass out from here, you will find that you are different. You are more adaptable, you are more trainable, you are more learnable, you can acquire new skills very fast. These type of activities gives you that opportunity, out of book knowledge, which you will not get in the future also. If you get such opportunity, come forward, participate, learn, enjoy. Thank you. Thank you. इधर जाने से पहले विकास में से कोई कुछ बोलेगा कि अभी यहाँ रह के काम करके कैसा फील हो रहा है? एनीवन? पाँच मिनट लास्ट में बोलना है तुमको, इसके बाद बाकी कोई एक बोलो. भी एनर्जी वो थोड़ा बोलना भी है. नहीं बोला लास्ट में. कोई नहीं है तो तुम.
अच्छा लगा सर, और बहुत कुछ कैसे मैनेज करना है, कहाँ जाना है, किसको क्या चाहिए, मतलब जितने मैनेजमेंट और मुझे सीखने को मिला, और ये हमारे लिए बहुत ही यादगार एक्सपीरियंस है। मैंने नवोदय जो किताब का कोर्स है उसके लिए नहीं है, उसके साथ साथ ऑलराउंड डेवलपमेंट, इसलिए हमने कहा कि नहीं डांस होने से कुछ सीखेंगे, कुछ हेल्प मिलेगा और कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए एक प्रोग्राम में हमने रखा कि थोड़ा सा अगर डिस्कशन किया जाए, कम्युनिकेशन गैप ना हो तो फिर कुछ अच्छा हो सकता है सर। A very good evening to respected deputy principals, sir, my fellow principals, teachers, and dearest of all my students. So first of all, a hats off to you, and kudos to you. We have observed how involved you have been in everything, and that involvement, it is not because of some external force or pressure. It is your involvement from inside. Okay? Voluntarily, you have got yourself involved in this program, and it's a big program, as Sir is saying. Under the able leadership of principals, your other teachers, okay? This program has been chalked out for 4 days. Out of 4 days, for 2 days, you have so many staff members are not in the school. Okay? And we have seen that you have been adapting nicely to the evolving situations. Morning in the mess, you are playing one role. Once the document verification starts, you are playing another role. Then, okay, again, okay, taking the candidates to various rooms. Okay. Then, okay, in the evening, arranging the files, okay, making the announcements. So, you are doing so much of multitasking, okay, without much of training, okay, without much of guidance. Okay. So this itself shows that how talented you are. Okay. Everybody here has worked very hard, but I feel that you people, this small group, you have worked the hardest among all. Okay. You students, you are surely an asset to the school administration. Okay. And it was very nice to hear about your goals, okay, your favorite subjects. Okay. It's very well that okay, you have planned something about your future. But okay, my dear students, between planning and reaching the target is the execution part. And the execution part, it is the toughest one, the longest one. Okay. Especially important are the years when you will finish your Navodaya life and you will be in the outside world. Okay. How you handle yourself during those years, the college phase, university phase, that will decide ultimately whether you will be able to reach your target or not. There are so many distractions, okay? So many varying temptations, okay? But if you are able to just ward them off, okay, and you are able to stick to your target, okay, then you will surely reach it, okay, if you keep on working hard. Okay? And tomorrow, Sir has told us that there is a cultural program, so we are very eagerly looking forward to see your talent in that aspect also, in the area also. Okay? So, once again, thank you all for your services. And the best part is that even at dinner time, after the whole day, you are serving everyone with a smile on your face. That's the best part. Okay? Give that up for the school for the next 2-3 years. Sir, Respected Daniel Principal, sir, respected colleagues, teaching staff, and dear students, good evening one and all. ये स्कूल जो है इसके साथ मेरा एक पुराना रिश्ता है। 2006 में 21 दिन तक मैं इस स्कूल में रहा था एक इंडक्शन कोर्स के दौरान। उसके बाद 2006 के बाद अभी मुझे आने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये स्कूल जो है वो पहले से बहुत
इम्प्रूव हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आप लोगों से मिलकर हुई। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता भी है कि नवोदय जो है वो एक नेशनल लेवल का ब्रांड है, वो इसकी एक ब्रांड वैल्यू है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बैठने का और बात करने का मौका मिला जो जॉब इंटरव्यूज लेते हैं या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को हेड करते हैं, और एक चीज़ जो है वो लगभग सभी ने एक जैसी बोली है मुझे कि जब भी कोई बच्चा नवोदय से आता है तो जॉब इंटरव्यू में हम सिर्फ ये सुन के कि ये बच्चा नवोदय का है, हम 50% सिलेक्शन उसका कर देते हैं, यानी मन बना लेते हैं कि इसको रखना है। और उसका कारण ये है कि आप लोग जिस तरह से ग्रो करते हो नवोदय के बीच में, डिफरेंट तरह के काम सीखते हुए, डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हुए, उससे आपके अंदर एक डिफरेंट तरह का एक एबिलिटी डेवलप हो जाता है, और वो एबिलिटी है सीखने की एबिलिटी। नवोदय का बच्चा जो है उसमें कोई भी चीज़ सीखने की इतनी अच्छी एबिलिटी है कि वो कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी से ग्रैस्प करता है, सीखता है, और वो सारी जो एबिलिटी है वो आती है आपके 6th to 12th तक जब आप यहाँ रहते हो, उस दौरान में ऐसे ही काम करके जो आप अभी कर रहे हो। तो इसी से आपके अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि आप एक ब्रांड बन जाते हो। और नवोदय का ब्रांड आज वो ब्रांड है कि थोड़े दिन पहले आपको पता होगा जब ये IAS की UPSC का जब रिजल्ट आया है तो टॉप 100 में से 36 बच्चे नवोदय के हैं। तो ये एक खास चीज़ है नवोदय के अंदर। और मैं यहाँ इस स्कूल में आकर आप लोगों को ये अलग अलग तरह के काम करके, जैसे सर ने बोला कि स्माइलिंग फेस के साथ आप हर तरह के रोल्स को कर रहे हो, ये देखकर मुझे एहसास होता है कि आप लोग जो है उस ब्रांड का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो, और आप उस ब्रांड को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो, न सिर्फ इस स्कूल के लिए बल्कि पूरी नवोदय विद्यालय समिति के लिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को बेस्ट विशेस देता हूं। अपनी लाइफ में आप बहुत आगे बढ़े, आप लोगों ने अपने लिए गोल डिसाइड कर लिए हैं, तो मैं आपको बेस्ट विशेस दे रहा हूं कि आप वो गोल्स जो हैं वो ज़िंदगी में अचीव करें और नवोदय का और अपनी फैमिली का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आदरणीय सम्मान के योग बहन प्राचार्य श्री अपूर्व राय जी, मेरे साथी प्राचार्य एवं शिक्षक साथी एवं प्यारे बच्चों, सभी को शुभ संध्या। मेरा पहला अवसर है जब इस JNB मॉडल गाँव में आने का अवसर मिला, लेकिन इस स्कूल के बारे में बहुत कुछ अच्छा सुना हूँ पहले, तो आने का बहुत मन था, लेकिन नवोदय विद्यालय समिति ने यह अवसर दिया तो बहुत खुशी मिली। और सबसे खुशी तो आप लोगों को देखने से मिला कि जैसे ही हम पहुँचे तो एक परिवार जैसा माहौल हमको देखने को मिला। कभी ये नहीं लगा कि हम किसी इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, तो ये आपके लिए बहुत हम लोगों के लिए खुशी है, और आप लोगों के लिए गर्व की बात है कि आप हमारे लिए इतना अच्छा कुछ किए हैं। जहाँ तक एजुकेशन का बात है, तो एजुकेशन का उद्देश्य लोगों के बिहेवियर में चेंजेस लाना है, जो ऑलरेडी आपके JNB मॉडल गाँव में लेके आया है। सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने से लोग कामयाब नहीं होते हैं। कामयाबी के लिए हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और सबसे बड़ा है पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आज रिसर्च में पाया गया कि नॉलेज का इन्फ्लुएंस ओनली 50% है, सक्सेस के लिए 85% उसका एटीट्यूड उसका गोल को या उसकी सक्सेस को डिसाइड कर रहा है। तो बहुत खुशी मिला कि आपके अंदर सभी बच्चों के अंदर बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड्स है। और दूसरा बात है कि आपके अंदर जो देखने को मिला कि इस एज में आप अपना डेस्टिनेशन तय कर चुके हैं कि मुझे कहाँ जाना है। बहुत सारे बच्चे JNB से बाहर हम बात करते हैं तो कॉलेज तक उनको पता ही नहीं होता है मुझे करना क्या है। डिग्री कंप्लीट हो जाते हैं लेकिन पता नहीं है कि सर अभी सोचेंगे, तब तक उनका ग्रेजुएशन हो जाता है। लेकिन आप लोग अभी से ही तय कर चुके हैं मुझे करना जाना है। जब हमको डेस्टिनेशन पता है तो निश्चित रूप से रास्ता भी हमको मिल जाता है। तो सक्सेस के लिए मैं जनरली 4 या 5 D का बात करता हूँ। तो हमको डेस्टिनेशन पता है, दूसरा हमारे अंदर डिज़ायर है कि हम कैसे हमारा जो गोल है हमेशा, जैसे अर्जुन को उसका मछली का आँख दिखता है, हमेशा उस पर हमको ध्यान रखना है। और डिटर्मिनेशन है, चाहे
जो भी परेशानियां हैं, चैलेंजेस तो आएंगे, जब आप बड़ा टास्क रखेंगे तो निश्चित रूप से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपका डिटर्मिनेशन पक्का है तो वो बाधाएं भी आपके लिए रास्ता छोड़ देंगे। डिटर्मिनेशन हो गया, उसके बाद में डिसिप्लिन है, तो JNB स्टूडेंट्स जैसा सर ने कहा कि अपना आप में एक ब्रांड है, तो डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। कहीं भी हो JNB स्टूडेंट मीन्स सब बढ़िया है। तो इस तरीके से निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में पहुंचेंगे। और 2-3 दिन हम लोगों के साथ में जो आप लोग सहयोग कर रहे हैं, वो सिर्फ सहयोग के साथ साथ बहुत कुछ मैनेजमेंट का चीज़ें भी आप लोग सीख रहे हैं, मैनेजर स्किल सीख रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी सीख रहे हैं, जो फ्यूचर में आपके लिए और देश के लिए काम आएगा। मैं आपके और पूरे विद्यालय के लिए एक बहुत ही उज्जवल और सुखद भविष्य की ईश्वर से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। Oh, good evening, everybody. Dear students and my friends. So first of all, I'd like to thank Mr. Devorai for giving me this opportunity to interact with you. So thank you, sir. तो मैं ये थोड़ा अलग डायरेक्शन में ले जाऊंगा, ठीक है? तो सर ने मुझे कहा है कि बच्चों को थोड़ा मतलब काउंसलिंग कीजिए उनसे थोड़ा, ताकि उसको थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। तो इसलिए मैं सोचा कि सबसे पहले तो आपने बहुत बढ़िया काम किया, आप लोगों ने ये बहुत बढ़िया काम किया है, और इससे आपका क्या डेवलप होगा, इससे आपका ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेसिटी है ये डेवलप होगा। आगे जाके तुम अगर कहीं बड़े पोस्ट पे अगर पहुंचेंगे, तब आपको अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज करने दिया जाएगा तो उसके लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि नवोदय का जो सिस्टम है ना, तो इट विल हेल्प यू। तो आप सबने बहुत बढ़िया काम किया है, तो उसके लिए मैं आप सबके लिए एक बार ताली बजाता हूँ, ठीक है? और दूसरी बात है कि मैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछा और मैं उसी वक्त का ऊपर बोलने वाला था, लेकिन सर ने और ऐड कर दिया कि एम इन लाइफ। देखो, एम जो होता है ये हमारा चेंज होते रहता है, ठीक है? आप लोगों का खासकर क्लास 6 में जब आए थे तो हो सकता है कुछ और था, अभी 9 में और हो रहा है, 11-12 में जाकर और कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो इसका सबसे वजह क्या है, हमको अगर मिस्त्री बनना है, हमको कौन कौन सा चीज का ज्ञान होना है। अगर काठ मिस्त्री बनना है, लकड़ी का मिस्त्री, आड़ी चलाना, आड़ी चाहिए हमारे पास, जो हथौड़ा है वो सब चाहिए, है ना? तभी मैं कुछ वो बना पाऊंगा। तो वही है आपका जो एम है, एम का साथ सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वो कोरिलेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है? आपको अगर एक स्पोर्ट्समैन बनना है, एक स्पोर्ट्स में तो आपको एक्सपर्ट बनना ही है, और वो स्पोर्ट्स के लिए क्या क्या फिजिकल पैरामीटर चाहिए वो होना भी जरूरी है। अब बुरा मत मानिए, मैं आपका ये कुछ ये भी मतलब निगेटिव ये भी कहूँगा, ठीक है? अगर आप बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसका क्या है रिक्वायरमेंट, हाइट, ठीक है? लंबा हाइट होना है, क्योंकि तुम बास्केटबॉल स्कूल लेवल में, क्लस्टर लेवल पर खेलने से कुछ नहीं होगा, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर जाना है लास्ट लेवल तक जाना है, और वही है आपका करियर जहां आपने चूज किया, उसका सामने एक आई तो होना ही है, कम से कम एक आई, इंडियन, उसके बाद इंस्टीट्यूट, ट्रिपल आई भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, ट्रिपल IIT भी है ना, सुना है? IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट, इस तरह का ट्रिपल आई भी है, और सिंगल आई भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, आई जहाँ जहाँ हो, इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो वो सब टारगेट करना है। तो जो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का जो सबसे टॉप लेवल, उसको टारगेट करना है। अगर तुम टॉप लेवल पर पहुंचने के लिए कोशिश करोगे, तभी कम से कम टॉप लेवल पे नहीं पहुंचने से भी थोड़ा नीचे में भी तुम जा सकता है, ठीक है? तो इसीलिए तुम्हारा जो सब्जेक्ट पढ़ के तुमको अच्छा लगता है उसी को परस्यू करना है। तुम लोगों ने सबने देखा है 3 इडियट्स ना, उससे भी थोड़ा सबक लेना है। ये सब फिल्म इसलिए ऐसे नहीं बनाया है, ठीक है? तो जो सब्जेक्ट में मेरा कमाना है, जो सब्जेक्ट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, तो उसका साथ के लिए जो हमारा मतलब टारगेट है, एम इन लाइफ है, वो अगर मैचिंग नहीं होता है तो पहुंचने में हम कामयाब नहीं होंगे। हम भी आपका जैसे ही और ये रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ के आए हैं, तो मेरा भी ऐसा एम था। तो बाद में हमने रियलाइज किया कि हमने क्यों वो टारगेट अचीव नहीं किया। मेरा जो साथी ने जो टारगेट अचीव किया, मेरा भी उतना ही पोटेंशियल था, तो मैंने क्यों नहीं किया। तो बाद में हमको ये रियलाइजेशन हुआ, ठीक है? और मेरा एक टीचर था मेरा स्कूल में,
So if you take advice, want to take advice, you go for the worst person. He will give the best advice. उसने कितना कोशिश किया, कोशिश करने का बावजूद वो अचीव नहीं कर पाया, वो आपको बढ़िया से बोल पाएंगे कि भाई हमने ये किया था, फिर भी हम नहीं कर पाए। तो आपको ये लगेगा कि ये किया था, तो ये नहीं किया था, तो इसीलिए वो नहीं पहुंच पाया। तो यू विल गिव द आंसर। अगर आपने जो सपोज मान लीजिए एक बार किसी ने एग्जाम दे दिया और उसको IIT मिल गया, वो आपको बोले अरे बहुत इजी है IIT को मिलना, हमने तो क्या किया, ये पढ़ा, क्लास में जो पढ़ा है वही सब पढ़ा, बस दे दिया और मैंने रैंकिंग इतना में आ गया, मुझे मिल गया। जो एक ही बार में IAS जो तब ये क्वालिफाई किया, वो तो बोलेगा बहुत ही आसान है, ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये पढ़ो और डेली इतना टाइम डिवोट करो, वो पढ़ के तुमको कोई उससे मतलब जो तुमको एडवाइस मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि तुम उससे तुमको कुछ मिलेगा। लेकिन जो बार बार दे रहा है, कोशिश कर रहा है और वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, वो तुमको बताएगा उसने क्या किया। फर्स्ट टाइम में ये किया था, नहीं हुआ, सेकंड टाइम में और ये ऐड किया और ऐसे पढ़ा वैसे पढ़ा, तो उससे क्या है, ही कैन गिव द बेस्ट एडवाइस और एंड यू कैन एड इट। उसका जो नेगेटिव पॉइंट तो वहां से निकला, उसने तो इतना किया था, लेकिन ये चीज उन्होंने नहीं किया। अगर मैं ये भी करूंगा तो मैं जरूर कामयाब बन के रहूंगा। तो इसीलिए मेरा यही एडवाइस है कि आपका जो एम इन लाइफ है, आपका सब्जेक्ट से फेवरेट सब्जेक्ट से, जो सब्जेक्ट पढ़ के आपको अच्छा लगता है, ठीक है। आपको अगर हिंदी इज योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो आपको इंजीनियर बनने का ख्वाहिश नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये निगेटिवली नहीं लेना है, क्योंकि ये कोरिलेट होना है ना। आपको अगर ऊपर चढ़ना है, उसके लिए सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी नहीं है तो आप कैसे ऊपर ये पहुंचेंगे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, इफ यू रियली लाइक साइंस, तो सिर्फ यही नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियरिंग, उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, प्योर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब लेके भी तुम अपना करियर लेके जा सकता है। और बहुत बड़ा जो इंस्टीट्यूट है जैसे IIT, वहाँ जाके एज ए प्रोफेसर बन सकता है। जहाँ II जितना है वहाँ भी जाके प्रोफेसर तुम बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। और आजकल बहुत सारा ऐसा एग्जाम है जो नवोदय का बच्चा नॉर्मली नहीं लेता है, ऑल इंडिया लेवल पर होता है। ज्यादातर नवोदय का बच्चा नीट और JEE, वही नीट JEE के लिए बच्चा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक मैंने वेस्ट करते हुए देखा, ठीक है। अभी जितना लोगों ने आजकल इंटरव्यू देने के लिए आया है, बहुत सारा लोग, ये सब लोग, इनका भी कुछ ऐसा ख्वाहिश था, लेकिन अभी जाके उन लोगों ने देखा है कि हमारा कुछ नहीं होने जा रहा है। तब जाके ये लोगों ने टीचिंग पोस्ट पे, हम लोगों ने भी टीचिंग पोस्ट पे लास्ट ऑप्शन ये करके आया। तो ये सब करने का क्या जरूरत है? आपको अगर टीचर बनना है, अगर आपको अच्छा लगता है, किसी टीचर आपको इंस्पायर करता है, तो बी ए टीचर। उसपे भी बीइंग ए टीचर यू कैन डू गुड फॉर द सोसाइटी, ठीक है। तो फिर आजकल बहुत सारा टीचर, हमने पता लगा भाई आपका एज कितना हो गया, अभी आपने कहाँ कौन सा डिग्री कब किया, लास्ट में जाके BA करता है वो लोग। आजकल ऐसा कुछ है, 4 साल में तुम्हारा कोर्सेस है, 4 साल में तुम्हारा BSc भी हो जाएगा और साथ साथ B.Ed भी हो जाएगा। यू विल बी एलिजिबल फॉर टीचिंग जॉब इन JNV, KV। और जो टीचर्स का जो सैलरी है ना, ये बहुत ही ज़्यादा है। जो स्टेट का जो बहुत बड़ा ऑफिसर्स है, उन लोगों से ज़्यादा है, इस पर रिस्पेक्ट भी है। तो इसीलिए अगर तुमको टीचर अगर बनना ही है, सपोज तुमने ये JEE और नीट नहीं मिला, लास्ट में जाकर लोग BSc पढ़ता है, फिर BSc करने के बाद आजकल 60 साल हो गया, BSc 4 इयर्स, फिर 2 इयर्स B.Ed, फिर मास्टर्स करता है, मास्टर्स के बाद लोग B.Ed करता है। ये सब उल्टा पुल्टा करके क्या फायदा है? जहाँ इंटीग्रेटेड, आजकल इंटीग्रेटेड कोर्स हुआ है, ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, नया ये हुआ है, 3 साल, 3rd ईयर रनिंग। तो अगर तुमको ठीक है, तुम कोशिश किया, नीट JEE नहीं मिला, तो डायरेक्टली ऐसा कोर्स पे ये होना है जिससे तुमको एक बैकअप भी रहेगा कि भाई BSc करने के बाद कहीं पे अगर निकाल गया, वो टीचिंग जॉब के लिए तुम जा सकता है। या तो आजकल क्लैट है, क्लैट का ये पता है तुमको, CLAT, क्लैट, ये मोबाइल में देख लेना है।
तो ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, ये कंबाइंड कोर्स है, इसके लिए है, ये एडवोकेट बन सकता है लॉ के लिए। तो उसमें बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें अगर पास करके आओगे तो कोई बड़ा बड़ा जो एडवोकेट है वो तुमको जूनियर के हिसाब से रखेगा, फिर उसका साथ तुम ये करके बड़ा अपना जो फील्ड है वो बड़ा लेवल पर तुम जा सकता है। तो बहुत सारा ऐसा ऑप्शन है। किसी को अगर हिंदी पसंद है तो बी ए हिंदी टीचर, प्रोफेसर बनो अपना सब्जेक्ट में, वही सब्जेक्ट लेके तुम आगे बढ़ सकते हैं। किसी को अंग्रेजी अगर पसंद है तुम लिटरेचर पढ़ो, तुम क्लास 10 के बाद वो साइंस जबरदस्ती लेने का जरूरत नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स अगर बोल रहे हैं तुम हमको तो तुमसे डॉक्टर बनने का उम्मीद बना के रखा हूँ, बन के बैठा हूँ, तो तुमको अगर पसंद नहीं है, तुम साइंस में तुमको अच्छा नहीं लगता है, अंग्रेजी अच्छा लगता है, हिंदी अच्छा लगता है, तुम भाई ह्यूमैनिटीज पढ़ो। ह्यूमैनिटीज पढ़ो, उसमें बहुत बड़ा बड़ा ये आजकल हम जहाँ भी जाते हैं बड़ा बड़ा ऑफिस में जाके बाहर में 2-3 जन का वेट करते हैं, वो लोग क्या है जो IAS ऑफिसर्स, ACS ऑफिसर्स, वही तो है ना, IAS वो सब के लिए कोशिश करना है। IAS ऑफिसर बनने के लिए तो थ्रू लिटरेचर भी जा सकता है, उसके लिए जरूरत नहीं। आजकल तो बहुत इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वो भी IAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये देखो अभी जो केस है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, हो सकता है तुम लोग जब पास आउट होके निकलोगे डॉक्टर बनोगे, उस समय तक ये चीज़ का डॉक्टर इंजीनियर का सोसाइटी में इतना ज़्यादा क्रेज नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर से पूरा भर जाएगा, पूरा गांव में डॉक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मेरा एक ही सलाह है कि जो करके पढ़ के अच्छा लगता है वही परस्यू करना है, और अपना करियर का जो है उसी से रिलेटेड जो भी है उसका करियर हिसाब से मतलब एम इन लाइफ वो बनाना है, तब आसान होगा। ठीक है, तुम अगर बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहते हो, तुम्हारे पास बॉल ही नहीं है, तुम्हारे पास क्रिकेट बॉल है, तो बास्केटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते ना, बास्केटबॉल नहीं खेल सकते। तो जो भी हो, यू थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट डीपली। और ये ऐसा नहीं करना है कि ये इसमें थोड़ा ये डॉक्टर बनने में मतलब ग्लैमर है इसलिए मुझे भी बनना है, ऐसा नहीं। कभी इमेजिन करके देखो अपने आप को डॉक्टर के, मैं डॉक्टर अगर होऊंगा तो बनूंगा तो क्या क्या करूंगा, अगर अच्छा लगता है, अगर तुम ये इमेजिन कर पाते हो अपने आप को तभी बनना है। तो बहुत लोग हैं ये इमेजिन नहीं कर पाते, नहीं सर मैं तो कभी बात ये करे क्वालिफाई किया, बाद में वो जब पेशेंट को देखता है, जो कोर्स पे जब आगे डेड बॉडी एक रख दिया उसको काटना है, वो डेड बॉडी देख के फेंट हो गया, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। ऐसा है बहुत सारा चीज़ें। तो अपना करियर अपना सब्जेक्ट का साथ क्लोज उसका रिलेशन रखना है। और मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और मैं अपना इंट्रोडक्शन बोल रहा हूँ। तो मेरा नाम है सिदानंद सुतिया, तो प्रिंसिपल JNV बक्सर। थैंक यू सर। तो ज़्यादा बोल दिया। और बहुत सारे प्रिंसिपल ने बहुत सारा पॉइंट बताए, डेफिनेटली तुम लोग बेनिफिट हुए थे। हाँ, तो वो कहेंगे तो ठीक है ना, ये प्रोग्राम अच्छा लगा ना। तो हमें चाहते थे कि नहीं बच्चों को कुछ पॉइंट ऐसा दिया जाए कि बच्चों को पता चले कि कितना इम्पोर्टेंस है लाइफ में, कुछ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, अभी हमारे टीचर की ओर से फाइनल हमारे लाइब्रेरी सर JNV लखीमपुर बोलेंगे। First, I want to like the introduction. Myself H. Gogoi, librarian, JNV Lakhimpur. Respected principal sir, respected almighty principal madam, and my dear student. The first impression is the last impression. I'm lucky enough. মই তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ লগত 2 times मैं काम किया। 2 बार मैंने सर के साथ काम किया लखीमपुर में, तो मैं बहुत लकी। ठीक है सर, सर से एक फ़ोन गया था मेरे पास कि आपको आना है। तो सर कहाँ आना है? मैं तो वेकेशन में हूँ सर। बोले नहीं, आपको आना है इधर लाइब्रेरियन का इंटरव्यू है। मैंने सर आलो से तो मेरा कोई ये नहीं है। बोले तो आपको आना ही है। सर के साथ 2 टाइम काम करने का मुझे एक्सपीरियंस है। सर कम बोलते हैं आना है, तो मैंने बोला सर ठीक है मैं आ रहा हूँ।
तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा कि मैं थोड़ा अथॉरिटी के बारे में बोलूँगा, बाद में अपने बारे में बोलूँगा। सर का जो मैनेजमेंट स्टाइल है, सेम कुछ मैनेजमेंट स्टाइल लखीमपुर में फॉलो किया था। स्टूडेंट आप लोग को जो असेंबली में सर क्रियर बारे में बोलते हैं, अबाउट सिविल सर्विस और अदर सर्विस के लिए बोलते हैं, तो लखीमपुर में भी ऐसा सर का प्रैक्टिस था। तो ये जो सर का जो लीडरशिप है, आज हमको बहुत खुशी लगा कि सर का जो लीडरशिप है वो इस स्कूल का बहुत ऊपर लेके जाए। और जो स्टूडेंट आप लोग इधर कम स्टूडेंट है, जब आफ्टर वैकेशन यू कन्वे द मैसेज कि आप लोग ने ये मिस किया, और बाकी जो रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर इस मीटिंग में था, आप लोग ने जो सीखा उसको मैसेज पास करिए। अगर ये मैसेज पास होगा तो एक दिन ऑल ओवर इंडिया, जैसे लखीमपुर टॉप 10 में था, लखीमपुर JNV लखीमपुर एक टाइम में टॉप 10 में था। मैं आशा करूंगा कि ये JNV मोरीगांव एक दिन टॉप 10 नहीं, फर्स्ट वन। तो मैं क्या आशा कर सकता हूँ इसको? लस्टली एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये तारे जमीन पे जो फिल्म है उसमें बोला था कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, तो आप स्पेशल है। लस्टली मैं रॉय सर को थैंक यू बोलूँगा कि सर आपने मुझे ये मौका दिया, नहीं तो मैं नहीं आ सकता था। बाकी जो सीनियर प्रिंसिपल मैडम, आप लोग ने जो ये बच्चे को जो मोटिवेटिंग स्पीच दिया, रियली इट्स ग्रेटफुल। एक्चुअली ये होना चाहिए पूरा असेंबली में, क्योंकि हम लोग रिसोर्स पर्सन के लिए हम लोग बाहर बुलाते हैं, लेकिन एक ही साथ इतना रिसोर्स पर्सन एक ही साथ मिला और इतना वैल्यूएबल स्पीच आप लोग दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, बच्चों के ओर से फिनिशिंग लेकर देना है, फिनिशिंग लेक्चर पास कर देंगे। उससे पहले अगर किसी बच्चे को कुछ बोलना है तो बोलना। किसी को बोलना है? कुछ नहीं बोलना है। जैसे स्कूल का सभी जितना भी बाहर से स्टाफ आ रहे हैं, तो सभी को तो अच्छा लगा होगा, उसके बारे में कोई तो कुछ बताओ, कैसा लगा, कैसा फील हुआ? अलग अलग स्कूल से अलग अलग लोग आए हैं, प्रिंसिपल से, PGD से, TGT से, OS से, SS से, JS से, सभी हैं। कुछ बीच में कुछ एक्सपीरियंस हुआ तो वो बता दो। कुछ नहीं बताया वो सब कुछ अच्छा है, इसका मतलब है ना? ठीक है, पाँच बजे फिनिशिंग कर लो हमारे इस आज के प्रोग्राम को। आदरणीय प्राचार्य, उपस्थित सभी शिक्षक एवं मेरे दोस्तों, सभी को शुभ संध्या। Thank you sir, thank you all the principals, thank you very much for your motivational speech and to inspire us, like about our various targets. Thank you sir from JNV Bangsa principal, and thank you mommy ma'am, thank you very much, क्योंकि आप लोगों ने इतना बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए थोड़ा हमें मोटिवेट, हमारा काउंसलिंग करने के लिए निकाला। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू। कोशिश करो कि जो जो बातें बोला गया है उन लोग उसको थोड़ा सा करोगे, और वो जो बोला एम उसको कोशिश करोगे कि रख पाओगे, तभी तो सबको अच्छा लगेगा ना, हमको भी अच्छा लगेगा। Yes teachers, we promise you all that we will make Navodaya feel proud, you guys feel proud, and our teachers, our parents and ourselves feel proud. ठीक है, थैंक यू सर। आप लोगों ने यहाँ थोड़ा वक्त दिया बच्चों के लिए, हम खुश हैं। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत ज़्यादा बच्चों को इंस्पायर करें, क्योंकि डेफिनेटली वो लोग भी अपना लक्ष्य में जा पाने का थोड़ा सा कुछ उम्मीदें हासिल कर पाएंगे। बच्चों उम्मीद नहीं छोड़ना है, ये मैं कर नहीं पाऊँगी कभी नहीं सोचना है। अगर कोशिश करोगे, कोशिश में दम होता है, जो कोशिश कर पाएगा वही लक्ष्य कर पाएगा। जैसे
किसी ने फिजिक्स लिया है तो मार्क्स उसको क्या किस में मिलेगा, फिजिक्स में ही तो मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा क्या? जो केमिस्ट्री पढ़ेगा उसको केमिस्ट्री में ही मार्क्स मिलेगा। तो इसीलिए तुम लोगों ने एम लिया है, अच्छा लगा सुन के, और कोशिश करो कि एम को हासिल करके दिखाओगे। तो कभी कभी हम तो जब बुढ़े होंगे तब तो मिलेंगे तो अच्छा लगेगा हमको कि हाँ ये कुछ हासिल कर पाए। इसलिए हम नवोदय हैं, कहीं पे कुछ नवोदय का मिलता है तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो ये भी नवोदय है। तो यही फीलिंग्स रखना है, नवोदय के लिए वर्क करना है। मतलब नवोदय के लिए सोचोगे तो मतलब अपना लिए ऑटोमेटिक सोचती है। जैसे नवोदय में एज ए प्रिंसिपल या एसी डीसी बन के आना है, मतलब अल्टीमेट तो खुद के लिए हो ही गया ना, नवोदय के लिए सोचा लेकिन ऑटोमेटिक खुद के लिए होता है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और बच्चों को जो इंस्पायर किया सबको थैंक यू।